શ્રી બધાના નામ નથી લેતો, સમય જેટલો હું ઓછો લઈ શકું એટલો પ્રયત્ન કરીશ. મારે તમને બધાને પૂછવું છે કે ભાજપથી થાક્યા છો? કોંગ્રેસ કઈ કરી શકે એમ છે? દિલ્હી અને પંજાબની જેમ ગુજરાતની અસ્મિતાને સ્થાપવી છે તો શું કરવાનું છે? 6 મહિના કમર કસી અને આ ભાજપનું રાજ અહીંયાથી પૂરું કરવાનું છે. કોંગ્રેસના અને ભાજપના 72 વર્ષમાં શાસનમાં રાજકારણ શબ્દને શરમનાક બનાવી નાખવામાં આવ્યો છે. રાજકારણી નામ પડે તો લોકોને ગમે નહીં કે રાજકારણી એવો શરમનાક શબ્દ કરી નાખવામાં આવ્યો છે. રાજકારણ એટલે શું? લોકો માટે જે સારું વિચારે અને રાજ કરતા હોય એને રાજકારણ કહેવાય. અને મને ગૌરવ છે કે આજે હું એવા સ્ટેજ ઉપરથી બોલી રહ્યો છું કે જ્યાં ખરા અર્થનું રાજકારણ, એક આમ આદમી માટેનું રાજકારણ આ આમ આદમી પાર્ટી કરી રહી છે. હું એ સ્ટેજ ઉપર ઊભો છું એનું મને ખૂબ આજે ગૌરવ છે. કાયમ તમે સાંભળશો ભાજપ કહેશે અમે કોંગ્રેસ કરતા સારા એટલે અમને મત આપો. કોંગ્રેસ કહેશે કે અમે ભાજપ કરતા સારા એટલે અમને મત આપો. આ એક આમ આદમી પાર્ટી એવી દેખાણી ને એટલે હું એમાં આવ્યો કે આમ આદમી પાર્ટી કેજરીવાલજી એવું કહે છે કે અમે લોકો માટે સારા છીએ એટલે અમને મત આપો. બીજેપી તમને એને કહેશો ને કે અમારે વોટ આપવો તો તમને સાંભળશે, પછી ગમે એ કયો તો પણ કોંગ્રેસ તમને સાંભળશે પણ કઈ કરી નહીં શકે. અને મજાની વાત એ છે કે આપણે આજે એવા નેતાની વચ્ચે છીએ કે જે सांभळवानी बात तो दूर दिल दी बात समझ लेते हैं और वो करके दिखाते हैं. उसका नाम केजरीवाल जी है. कई खोटी बात करूं छू? थोड़ो मोतेथी अवाज थाय. पहला हतुं रोटी कपड़ा और मकान. हूँ पाछळ मित्रों ने कहूं कि एनुं माइक बंद राखे. पहला रोटी कपड़ा અને મકાનની જ વાત હતી. એની સાથે કેજરીવાલ સાહેબે 3 શબ્દો ઉમેર્યા એવું હું માનું છું. આરોગ્ય, શિક્ષણ અને સુરક્ષા આ પણ ભારતના નાગરિકનો અધિકાર છે એવું સ્થાપિત જો કર્યું હોય તો એ કેજરીવાલ સાહેબે કર્યું છે. રાશનની કીટ ઘરે આવે તો ગમે કે ન ગમે? કે ન ગમે? અને દિલ્હી અને પંજાબ પોલીસ ઘરે આવીને તમને ન્યાય આપણે કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? તો કોને ચૂંટાડીને મોકલવી જોઈએ? સંભળાણું નહીં. જાજો ટાઈમ નથી લેતો. દેશનો અર્થ એ થાય કે એનો સીમાડો એ દેશ નથી. આ ધરતી, પર્વત, નદી એ દેશ નથી, પણ એ સીમાડાઓમાં રહેતા માનવી, પશુ અને પક્ષીઓ છે ને એનાથી દેશ બનતો હોય છે. અને એની સુખાકારી હોય ને એને દેશભક્તિ કહેવાય. આજે ભારતનો નાગરિક નારાજ છે તો આ ભાજપવાળા કેવી રીતના કહી શકે કે એ રાષ્ટ્રવાદી છે? એક કટ્ટર રાષ્ટ્રવાદ નિસ્થાપન કર્યું હોય તો કેજરીવાલ સાહેબ છે અને મને એનો ખૂબ ગૌરવ છે અને એટલે હું આ પાર્ટીમાં જોડાણો છું.
सर, आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैं। सब जब लोकशाही आई तो एक कुएं में सब पड़े थे, एक दूसरे को कंधा देके ऊपर उठाए निकाला। वो पहले निकलने वालों में से मैं भी एक था। काफी लोग निकले, आगे चले गए, थोड़े पैसे वाले हो गए, थोड़े आगे चले गए, थोड़े मिडिल क्लास थोड़े आगे चले गए, लेकिन सब मिलने के बाद भी मैं कुएं के नजदीक खड़ा था कि मैं अभी जो अंदर है उसको निकालूं। और इसलिए मैं पॉलिटिक्स में रहा सर, लेकिन मैं उम्मीद खो बैठा था। एमएलए बना, विधानसभा में बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है ऐसा मान के मैं घर पे बैठा था सर 3 साल में घर में बैठा। सर, आप उम्मीद लेके आया, मैं घर से निकला हूं ये लोगों का काम करने के लिए कि जो बाकी के लोग कुएं में पड़े उसको हाथ देके मैं कैसे निकालूं, उसके लिए मैं फिर से आपसे उम्मीद लेके मैं चला। और मुझे आज खूब खुशी है, आज ये जनमेदनी बोल रही है, आज ये जनमेदनी भाजपा को जवाब दे रही है, उसका मुझे गौरव है। हमें और कुछ नहीं कहना है। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आखिरी बार पूछ लेता हूं, जोश से थोड़ा जवाब दीजिएगा। थोड़े गांधीनगर में बैठे हैं, उन लोगों को भी पता चले हमें जीतना है, लोगों के लिए जीतना है, एक कट्टर राष्ट्रवाद के लिए जीतना है, तो कमर कस के 6 महीने काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। और रिजल्ट पे हमारा ये नाच सुनाई देगा सबको, इतनी आशा रख के आप सबसे नम्र विनंती करता हूं और बैठता हूं। आप सबका आभार। जय हिंद। खूब खूब आभार इंद्रनील भाई। હવે આપણે સૌ ઘણા સમયથી આતુરતાથી જેની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ, હમણાં વાત કરી કે મોંઘવારીની વાત કરી, શિક્ષણની વાત કરી, આગળના વક્તાઓએ આરોગ્યની વાત કરી। આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 15,000 20,000 રૂપિયા કમાવાવાળા માણસ પાસે આજે પોતાનું ઘર ચલાવવા માટે પૈસા નથી। એ બિચારો વિચારે છે કે હું મારા બાળકની ફી ક્યાંથી ભરીશ, મારું આગળના મહિનાનું બિલ ક્યાંથી ભરીશ। આવા સમયમાં આપણી પાસે એક ક્રાંતિનો નાયક છે, જનનાયક છે, જે આખા ભારતમાં એકમાત્ર વ્યક્તિ છે કે આજના કપરા સમયમાં મોંઘવારી સામે લડવાનું સોલ્યુશન આપે છે। એ પોતાના નાગરિકોને કહે છે કે તમારું વીજળીનું બિલ હું ભરીશ। એ પોતાના નાગરિકોને એમ કહે છે કે તમારા બાળકોને ભણાવવાની જવાબદારી મારી છે અને ભણાવવાની વ્યવસ્થા હું કરીશ। એ પોતાના વડીલોને, પોતાના નાગરિકોને એમ કહે છે કે તમારા ઘરમાં કોઈ બીમાર પડે તો એનો ઇલાજ કરાવવાની જવાબદારી મારી છે। એ પોતાના નાગરિકોને એમ કહે છે કે તમારે સરકારી દવાખાના, સરકારી દફતરોના, સરકારી ઓફિસોના ધક્કા નથી ખાવાના। મારો સરકારી કર્મચારી તમારા ઘરે આવીને તમારું કામ કરશે। તમે ગરીબ છો, તમારે રાશનના અનાજની જરૂર છે તો તમારે લાચારી ભિખારીની જેમ તમારે રાશનની દુકાનના ધક્કા નથી ખાવાના। મારો માણસ આવીને તમારા હકનું અનાજ તમારા ઘરે આપશે। આ દેશને, આ ભારતને આજે આવી ક્રાંતિની જરૂર છે અને ક્રાંતિના જનનાયક આપણા સૌના રાષ્ટ્રીય આદર્શ દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી એવા માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીને વિનંતી કરીશ કે આવીને આપણને આગળનું માર્ગદર્શન કરે। બોલો ભારત માતા की। एक बार जोर से, पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। इतनी भारी संख्या में मैं देख रहा हूं चारों तरफ, इतनी भारी संख्या में राजकोट से और आसपास से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों,
आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं आज यहाँ पे मुझे सुनने के लिए, हम सबको सुनने के लिए। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल गुजरात के गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पिछले 2-3 महीनों में मेरा भी कई बार आना हुआ। हमारे कार्यकर्ता भी गांव-गांव में जा रहे हैं, घर-घर में जा रहे हैं। चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा है। मुझे दिल्ली के लोग खूब प्यार करते हैं, पंजाब के लोग खूब प्यार करते हैं, और मुझे बेहद खुशी कि अब गुजरात के लोग भी मुझे खूब प्यार करने लगे हैं। इस प्यार, इस विश्वास, इस सम्मान, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, गुजरात के कई लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। गुजरात में आता हूं, यहां भी ढेरों लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा आई, आके मुझे धीरे से कान में बोलती है, बेटा अयोध्या के बारे में सुना है? मैंने कहा अयोध्या जानता हूं अम्मा, वही अयोध्या ना जहां पे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था? बोली हां वही अयोध्या। बोली बेटा गए हो वहां पे? मैंने कहा गया हूं, बहुत सुकून मिलता है। राम जन्मभूमि पे जाके बहुत सुकून मिलता है। बोली बेटा मैं बहुत गरीब हूं, गुजरात के एक कोने में एक गांव में रहती हूं, मेरा बड़ा मन है अयोध्या जाने का। मैंने कहा अम्मा आपको अयोध्या जरूर भेजेंगे, एसी ट्रेन से भेजेंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, गुजरात के एक एक बुजुर्ग और एक एक माता को हम अयोध्या जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। एक ही विनती है मां, मैंने कहा मां भगवान से प्रार्थना करो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बने। मैंने उनको बताया दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना में हम दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। हमारे बूढ़े माता पिता, बूढ़ी मां, बूढ़े बुजुर्ग, उनको हम एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या जी, शिरडी बाबा, पुरी जी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, इस तरह से 12 स्थान हैं अयोध्या जी। उन स्थानों पे हम तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं। पिछले 3 साल में मैंने 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, 50,000 बुजुर्गों। तो मैंने अम्मा को बोला मां आपसे एक ही प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, तो गुजरात के एक एक बुजुर्ग को और एक एक माता को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। यहां पे गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। आप में से किसी को अयोध्या जी के दर्शन कराए भाजपा वालों ने? एक को भी कराए? किसी को भी नहीं कराए। 27 साल में उन्होंने एक भी व्यक्ति को दर्शन नहीं कराए, तीर्थ यात्रा नहीं कराई। हमने 3 साल में 50,000 लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई।
मैं सी आर पाटिल साहब को कहना चाहता हूं। सी आर पाटिल कौन है जानते हैं आप लोग? सी आर पाटिल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार तो सी आर पाटिल ही चलाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा है क्या कि सरकार तो सी आर पाटिल ही चलाते हैं। मैं पाटिल साहब को कहना चाहता हूं, पाटिल साहब आपने तो 27 साल में एक भी गुजरात के आदमी को तीर्थ यात्रा नहीं कराई। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के सारी माताओं को और सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा देंगे। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे काम करना आता है। एक और मेरे पास गुजरात के बहुत गरीब एक किसी कंपनी में चपरासी का काम करते हैं, एक व्यक्ति आए मेरे पास मिलने के लिए। उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बोले सर, गुजरात में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। अब आप सरकार बनाइए गुजरात में, और जैसे आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे किए, ऐसे ही गुजरात के भी सरकारी स्कूल अच्छे कर दीजिए। मैंने कहा आपको पता है कि हमने दिल्ली में अच्छे किए सरकार? बोला सर हमने सोशल मीडिया पे देखा। आप में से कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग। इसका मतलब बाकी सबके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का कैसा हाल है? खराब है। मेरे को कई लोगों ने, मनीष सिसोदिया जी भी आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी देख के गए। इतना बुरा हाल सरकारी स्कूलों का गुजरात में, इतना बुरा हाल। दीवारें टूटी पड़ी हैं, कमरों पे ताले लगे पड़े हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो हैं, छत टूटी पड़ी है। इतना 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। पहले दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, इससे भी बुरा हाल था जो आज गुजरात के स्कूलों का है। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। आपको लग रहा होगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आपको लग रहा होगा अपनी तारीफ कर रहा है। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7%। प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चों ने अपने नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया है। 4 लाख बच्चों ने, अमीरों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। मुझे खुशी होती है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जो पढ़ते थे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, ड्राइवर का बच्चा, आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जैसे गौरव एक लड़का है, उसके पिताजी गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उसके पिताजी 12वीं पास है, उसकी माताजी 12वीं पास है। इस बार गौरव का आईआईटी का नाम सुना है आपने? आईआईटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट होता है। इंजीनियरिंग सबसे बड़ा। मैं भी आईआईटी से पास हूं, मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है। एडमिशन, गौरव का एडमिशन आईआईटी धनबाद के अंदर हुआ है। एक और लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी ड्राइवर हैं, 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, बहुत गरीब बच्चा है, झुग्गियों में रहता है। उसका इस बार आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ है। और ये 2 बच्चे नहीं है, 450 बच्चों का आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ है इस बार हमारे सरकारी स्कूलों से। मुझे बड़ी खुशी होती है।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इतना शानदार इंतजाम कर दिया, 5 साल के अंदर अगर गरीबों के बच्चों को हमने भविष्य दिया है, तो 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के सरकारी स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी ठीक करने की, वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी स्कूल ठीक नहीं करना चाहती थी, वो कभी सत्ता में स्कूल ठीक करने के लिए नहीं आए, वो केवल लूटने के लिए आए थे। 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, वो केवल और केवल लूटने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह आम आदमी हूं। आज से 8-10 साल पहले तक मेरे को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल कौन है। ये तो ऊपर वाले की पता नहीं क्या कृपा हुई कि जनता का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर स्कूल ठीक कर दिए। अब मेरे को लगता है यार पूरे देश के स्कूल ठीक, कि जनता का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर स्कूल ठीक कर दिए। अब मेरे को लगता है यार पूरे देश के स्कूल ठीक हो सकते हैं। इन पार्टियों ने धोखा दिया इस देश के लोगों को, इन सारी पार्टियों ने मिलकर धोखा दिया इस देश के लोगों को। मैंने कसम खाई है कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहूंगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। मुझे दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, अब पंजाब के लोगों ने मौका दिया, आज गुजरात के लोगों से कहता हूं एक मौका देके देखो। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार देने की जिम्मेदारी मेरी। कोई पार्टी आके आपको अच्छे स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगेगी। केजरीवाल आपसे स्कूल और अस्पताल के नाम पे वोट मांग रहा है। मैं करके आया हूं दिल्ली में, पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं हम लोग। यहां पे प्राइवेट स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े करें। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने, मैं सब सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं होते, पर अक्सर कई प्राइवेट स्कूल वाले गुंडागर्दी करते हैं कि नहीं करते? अनाप शनाप फीस बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? कभी कहते हैं लाइब्रेरी फीस, कभी कहते हैं पिकनिक फीस, कभी कहते हैं डेवलपमेंट फीस, और अनाप शनाप फीस बढ़ाते रहते हैं। एक हर आदमी चाहता है मेरे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, हर आदमी चाहता है मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं। दिल्ली पैसे की फीस नहीं बढ़ाने दी। जिस स्कूल ने फीस बढ़ाने की हिम्मत करी, उस स्कूल को सरकार ने टेक ओवर कर लिया। मैं पूछता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर हम प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर सकते हैं, तो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती क्या? कर तो सकती थी। मिले हुए हैं इनके साथ, मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए? मिले हुए हैं इनके साथ। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं CR पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए? मैं CR पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, अपने आम आदमी और मिडिल क्लास वालों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने? 6000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हो, अमीरों के स्कूल खुलते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, CR पाटिल जी कह रहे थे केजरीवाल ठग है। सुना आपने? एक भाषण में के बोले एक दिल्ली से महा ठग आता है, केजरीवाल ठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ठग हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ठग सरकारी स्कूल ठीक करता है? कोई ठग बच्चों की शिक्षा की बात करता है?
कोई ठग लोगों के अस्पताल की बात करता है, कोई ठग लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बात। मैं आपको ठग नजर आता हूं? मैं आपसे पूछे, जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ठग है, हाथ खड़े करें। जिन जिन लोगों को लगता है सीआर पाटिल ठग है, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दें, जरा मोड़ दें कैमरे वाले और दिखा दें कि सीआर पाटिल के बारे में गुजरात की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि सीआर पाटिल ठग है, हाथ खड़े करें जोर से। कैमरे वाले, मुझे पता है आप दिखा नहीं पाओगे, आपका टीवी चैनल बंद करा देंगे वो, लेकिन फिर भी एक बारी रिकॉर्डिंग तो कर ही लो। सीआर पाटिल जी कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है। ये बड़ा अच्छा आतंकवादी है, हर लोगों के स्कूल बनवाता है। ये बड़ा अच्छा आतंकवादी है, लोगों की शिक्षा की बात करता है, अस्पताल की बात करता है, सड़कों की। ऐसा आतंकवादी जो लोगों को अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन कराता है। क्या आतंकवादी है यार ये। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। यहां इतने सारे लोग आए हुए हैं, जरा मुझे बताएं किस किस को लगता है कि उसके बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, जरा हाथ खड़े कर दें। मेरे को एक और आदमी मिला, बोला जी एक बिजली का, मैं एक छोटे से घर में रहता हूं, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक पंखा, एक आज छोटी छोटी, बोला 4,000 रुपए महीने का बिल आता है मेरा। 4,000 रुपए। आपको पता है दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है? किस किस को पता है कि दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है? बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए बिजली फ्री? ये बिजली फ्री नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? सारे पैसे खा जाते हैं। बिजली फ्री देने वाली सरकार चाहिए कि पैसे खाने वाली सरकार चाहिए? फ्री देने वाली सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लेके आओ। आम आदमी पार्टी को लेके आओ। 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। ये आपको कभी फ्री बिजली नहीं देंगे। आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, घर में कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो, भगवान सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, लेकिन अगर घर में कोई बीमार हो जाए, थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, इतना महंगा इलाज हो गया, इतना महंगा इलाज हो गया, जमीन बिक जाती है, जायदाद बिक जाती है, जेवर बिक जाते हैं, सारी जमा पूंजी सब बिक जाती है, आदमी बर्बाद हो जाता है। और कई लोगों को तो आत्महत्या करनी पड़ती है। दिल्ली में हमने 2 करोड़ लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया हम लोगों ने। किसी को छोटा सा बुखार हो उसका इलाज भी मुफ्त, किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, 30 लाख 40 लाख 50 लाख का भी खर्चा आए, वो भी सारा मुफ्त। सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सारा। यहां पे सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? बुरा हाल है, मुझे बताया गया, बहुत बुरा हाल है। पहले दिल्ली के सरकारी अस्पताल भी बहुत खराब थे, हमने आज शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। लोग अब अपोलो, मैक्स, बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं जाते, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। हमने ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। आज गुजरात के कुछ बच्चे मेरे से मिलने के लिए आए, बोले सर यहां पे रोजगार नहीं है, रोजगार के, पढ़े लिखे बच्चे बिना रोजगार के घूम रहे हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली में हम लोगों ने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है, 12 लाख बच्चों को, और अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो अगर रोजगार चाहिए तो आम आदमी पार्टी दिला सकती है। और मैंने सुना यहां पे पेपर बहुत फूटते हैं, फूटते हैं मतलब लीक होते हैं। मेरे को पता चला गुजराती में उसको फूटना कहते हैं, कि पेपर बहुत फूटते हैं।
पेपर बहुत लीक होते हैं। मेरे को अभी लिस्ट दे रहे थे, इतनी सारी, ये इतने पेपर फूटे अभी तक। 2014 में जीपीएससी मुख्य अधिकारी का पेपर फूटा, 2015 में तलाटी परीक्षा लीक हो गई, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर गांधीनगर परीक्षा लीक हो गई, 2018 में टीईटी शिक्षक योग्यता परीक्षा लीक हो गई, 2018 में मुख्य सेविका परीक्षा फूटा, 2018 में नायब चिटनीस, इतनी लंबी लिस्ट है। सारे पेपर फूट जाते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। मैं पाटिल जी से कहना चाहता हूं, एक पेपर नहीं तुमसे ठीक से होते, तुम सरकार क्या चलाओगे? तुमसे एक पेपर नहीं होते, तुमसे एक पेपर ढंग से नहीं होते, पेपर का आयोजन ढंग से नहीं होता, तुम सरकार क्या चलाओगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पेपर लीक कौन करवाता है? इसके पीछे कौन लोग हैं? कोई जेल नहीं जाता, किसी को जेल नहीं होती, पेपर फूटते हैं, फिर और पेपर फूटते। जनता, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। अगर आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, आप मुझे वोट दे देना। आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, लफंगई चाहिए, राजनीति चाहिए, उनको वोट दे देना। मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, ईमानदार हूं, देशभक्त हूं, अच्छी सरकार चलानी आती है। आम आदमी पार्टी